So is that right or not? Okay, so we are going to start a lecture over here about like we did in the last class, chromatography and distillation. So these are two important topics that we already did. So what should be the next? We definitely revise for the rest of all the students. So आप मुझे बताएं जो अभी यहाँ मौजूद हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए, so it will be easier for you and a very well. Let's start redox over here, right? A redox is a very important topic and sometimes students suffer over here, so we are going to start redox reaction over here, right? Okay, sorry, students. I have some internet issue today now, so that is why the class is suffering. Okay, so am I audible to all of you?
Yes, sir. Okay, so we were talking about redox reaction in today's class. Okay, so what is redox means? You can see the word. The redox is showing you. Sir, can I answer? Yes, yes, Hamza. Sure. Sir, redox reactions are the reactions which have oxidation and reduction at the same time. Okay, that's very good. Redox means a reaction in which we have reduction and oxidation at the same time. That's very good. This is reduction and this is oxidation showing you. Very good. So first of all, students, you need to remember this कि ये जो topic है बच्चों, ये जो topic है ये बहुत ही छोटा topic है. You can say that. ये बहुत छोटा topic है. दूसरी बात आप क्या याद रखनी है आपको बच्चों कि ये topic किसी भी क्वेश्चन में किसी दूसरे टॉपिक के साथ एडजस्ट होकर आ सकता है और इसका मैक्सिमम आपके पास पेपर में 2 एमसीक्यूज आएगा मैक्सिमम और उसके अलावा आपके पास इसका जो क्वेश्चन आएगा वो 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ ज्वाइंट होकर पीरियोडिक टेबल के साथ ज्वाइंट होकर ये किसी भी सवाल में आपके पास आ सकता है इवन कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आ सकता है बिकॉज वी हैव अ पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल इफ यू टॉक अबाउट अल्कोहल्स converging into carboxylic acid, right? तो हम इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि किसी भी सवाल को पूरा करने के लिए आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन को समझ में आना बहुत जरूरी है इवन अगर आपने कोई क्वेश्चन कर लिया है 10 मार्क का क्वेश्चन है उसमें से अगर आपने 6 मार्क का क्वेश्चन कर लिया है तो उसमें पूरे 10 लेने के लिए आपको रिडॉक्स का आना बहुत जरूरी है दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो चले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन से राइट द वर्ड ऑक्सीडेशन इज क्वाइट क्लियर द वर्ड oxidation is quite clear. The meaning of this is the reaction with oxygen, or you can say that over here, the addition of oxygen. Addition of oxygen, right? Now, what is oxygen addition? For example, if you have magnesium, you are reacting it with oxygen. So you will see that in the product that magnesium is attached with the oxygen. That means oxygen is going to add in the magnesium, right? And for the balancing, you can write 2 over here and 2 over here. That is something else. But the thing to remember over here is oxidation. Oxidation समझनी है आपने. तो oxidation समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि what is the meaning of addition of oxygen. So this is, you can see this, the oxygen is not here with the magnesium over here, but in the product you can see that the oxygen is attached with the magnesium. That means magnesium gain oxygen, right? So what is the meaning of this? This is showing you oxidation, right, bachcho? Is that clear? Yes, clear. Then over here we have reduction. That is the other thing. That is, you can say that completely opposite of oxidation. जो ऑक्सीडेशन में होगा उसका पूरा उल्टा रिडक्शन में होगा ठीक है जो कुछ भी ऑक्सीडेशन में होगा उसका पूरा उल्टा क्या होगा रिडक्शन में होगा so if you are saying that addition of oxygen over there so definitely over here it is removal of oxygen. It is removal of oxygen, right? I'm not writing O2 over here, right? I am saying oxygen. Oxygen atom की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये आपने याद रखना है मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ ठीक है आप लोग ये मत समझिएगा कि O2 की बात कर रहा हूँ यहाँ ऑक्सीजन गैस की बात नहीं हो रही यहाँ हो रही है कि एक ऑक्सीजन ऐड हो जाए 2 हो जाए 3 हो जाए we don't care, right? ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए बस या ऑक्सीजन रिमूव होना चाहिए रिसेंटली कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली कि अभी आप ब्लास्ट फर्नेस की एग्जांपल्स आप लोगों को बड़ी अच्छे से याद होगी Fe2O3 reacting with carbon monoxide. I'm not writing the balance equation right now. I'm just showing you that what is reduction means, right? And you can see over here, right? So यहाँ पर आयरन के साथ ऑक्सीजन मौजूद है जबकि यहाँ पर आयरन खाली हो चुका है यानी कि इसके पास जो ऑक्सीजन थी वो इसने रिमूव कर दी छोड़ दी इसके हाथ से निकल गई है ना तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है आयरन के पास ऑक्सीजन था अब नहीं है ठीक है आयरन के पास ऑक्सीजन था रिएक्टेंट साइड में बट प्रोडक्ट साइड में नहीं है ठीक है दैट इज व्हाट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मींस सो व्हाट इज दिस इज रिडक्शन इज दैट क्लियर बच्चों
the first thing of the redox is clear or not? Any one of you, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं clear हुआ तो आप मुझे बताएं, मैं दोबारा example देता हूँ. Clear, sir. Clear, sir. Okay, sure. Just see over here. For example, if we have zinc adding in copper oxide, so you can see over here that zinc gain oxygen and copper loss oxygen. Is that clear, bacho? You can see over here. Okay. That this is the reaction, right? This is the reaction. Just focus on the zinc. Just focus on the copper. Just see over here. What's going on over here? You can see this. Zinc is gaining oxygen while the copper is losing oxygen, right? So gain of oxygen is what? Gain of oxygen, right? It is what? This is oxidation, right? And the loss of oxygen is what, bacho? This is reduction. Is that clear, everyone? Farzam, Asna, Samin, is that clear, bacho? Yes. Okay, what you can say over here, you can say that zinc atom oxidized to zinc oxide. This is the statement you can write, right? And even you can write over here that copper, or you can use the ion over here as well. Ion you can use, because we know that zinc oxide is the compound, so definitely we have zinc ion over there. Or you can use that copper ion reduced to copper atom. You can state your words or your concept over here like this. ठीक है, अगर आपको पेपर में पूछा जाता है तो आप उसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, यार कॉपर ने क्या किया है, जिंक ने क्या किया है. और अगर वो रीजन पूछता है, so you can simply say that addition of oxygen, removal of oxygen. That's all. अगर इस तरह की कोई इक्वेशन आती है जिसमें आपको क्लियर नजर आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है कार्बन, यहाँ पर आपके पास क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड. So you can simply say that the carbon is going to be oxidized. Carbon oxidized to carbon dioxide. And how? If someone asks you the reason, so you can say that simply it is showing you the gain of oxygen. This is the reason. If the examiner asks you for 2 marks, so it will be for 1 mark and it will be for 2nd mark. Is that clear, every one of you? Sir? Yes. Sir, what happened to oxygen here? Definitely oxygen is going to be reduced over here because we have 2 oxygens over here. And now on the product side, we don't have oxygen. So actually the molecule of oxygen lost its identity, right? That means oxygen gas is going to be reduced to carbon dioxide, right? Okay, sir. Okay, but remember, whenever this type of question will be in exam, it will be with this. You can see over here. If carbon is going to be oxidized, definitely something going to be reduced, right? Don't worry about this. इस तरह के आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है? Then secondly, the second statement, you can see over there, the addition of oxygen के बाद हमारे पास क्या आता है बच्चों? यहाँ पर हमारे पास second आ जाती है हाइड्रोजन के बारे में. हाइड्रोजन क्या होता है आपके पास? If you have addition of hydrogen, if you have addition of hydrogen, again I am not telling you hydrogen gas, I am asking for hydrogen atom. Okay, so it should be the completely reverse, removal of hydrogen, right? Sometime बच्चे इस तरह समझते हैं कि जो है ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन गैस का पूरा ऐड हो जाना. तो बच्चों इसके लिए आपको एग्जांपल ये वाली याद रखनी है. फॉर एग्जांपल, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं और हम इसका रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं? ऑक्सीजन के साथ करा देते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. तो ये जो सिंगल ऑक्सीजन भी डबल ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप समझें ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी O2, तो वो आपकी गलत फहमी होगी, वो आपको दूर करनी है. यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन की बात हो रही है. अगर सिंगल एक ऑक्सीजन का भी एटम ऐड हो रहा है, दैट मींस दैट इज ऑक्सीडेशन, राइट? नाउ रिडक्शन. रिडक्शन का एक बहुत आसान सा प्रोसेस जो कि आपको याद होगा शायद, अगर किसी ने पढ़ा हो अब तक, तो दिस इज द रिएक्शन in which we are going to form
अल्केन्स, फ्रॉम अल्कीन्स, राइट। अल्केन्स बनाते हैं हम किससे? अल्कीन से, ठीक है। ये एक प्रोसेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, शायद कुछ बच्चों को याद हो। दिस इज व्हाट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्जरीन। ये एक तरह की जो है आपके पास, आप कह सकते हैं कि आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन सिंपली सी दैट what's going to be happen over here. You can see this is the addition of hydrogen. यहाँ पर आपके पास 4 हाइड्रोजन है और जबकि इसमें आपके पास 6 हाइड्रोजन हो गए, यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो गया। और अगर किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसको याद होगा कि इस प्रोसेस का नाम भी क्या है? हाइड्रोजनेशन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दिस इज व्हाट शोइंग यू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यू कैन सी दिस, 4 से 6 हो गए, दैट इज व्हाट रिडक्शन। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? Yes. अगर आप ट्रैकिंग की बात करते हो तो ट्रैकिंग भी आपके पास एक प्रोसेस है बच्चों, जिसके अंदर आप हीट करके थर्मल डिकम्पोजिशन से तोड़ते हो तो आपके पास क्या बनता है? आपके पास एक अल्कीन बनता है और एक आपके पास क्या बनता है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक जो है कोई भी अल्केन बनता है या हाइड्रोजन गैस बनती है। सो यू कैन सिंपली सी ओवर हियर, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन हो गए, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है। रिमूवर और हाइड्रोजन इज व्हाट? देयर इज ऑक्सीडेशन। यस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन के अंदर आएगा। exactly, I am writing on the right hand side reduction. Okay, this is the reduction part. Okay, clear Samin? Yes, sir. Okay, so this is what reduction. Let's move towards the very important point, which is what? This is very important. Oxidation is what? Loss of electron, and reduction is what? It is gain of electron, right? This is very important, and for this you need to remember the word oil rig. You need to remember this word for this. Okay, oxidation is loss of electron, reduction is gain of electron. You need to remember this word. It is a very important word, right? आपको कहीं पर भी पूरे एग्जाम में redox reaction मिलता है और फिर आपको वो रीजन पूछता है, लाजमी पूछता है कि ना आपके पास फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीडेशन क्यों है, रीजन वो पूछता है, ठीक है। तो अगर वो रीजन पूछता है तो आप आंखें बंद करके ये रीजन लिख सकते हो, दिस इज द बेस्ट रीजन, ठीक है। अगर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यार ऑक्सीजन गेन हो रही है तो दैट्स गुड, आप वो रीजन लिख सकते हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स वेरी गुड, आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको कहीं परेशानी हो रही है और आप नहीं समझ पा रहे हो तो दिस इज द रीजन, डेफिनेटली आप ये लिख सकते हो आंखें बंद करके, आपको नंबर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या बात हुई है? ये बात ऐसे हुई जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने रिएक्शन करा दिया सोडियम का क्लोरीन के साथ, ठीक है। यहाँ हमने रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या बन गया बच्चों? NaCl, ठीक है। बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर सकते हैं, ये हमने बैलेंस कर दी इक्वेशन, ठीक है। ये बन गया NaCl। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए बच्चों कहाँ ऑक्सीडेशन हुई और कहाँ रिडक्शन हुई? नाउ वी डोंट हैव इवन हाइड्रोजन ओवर हियर, वी डोंट हैव इवन ऑक्सीजन ओवर हियर, तो हमारे लिए इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह की इक्वेशंस में जब भी वो आपसे रीजन मांगेंगे तो आपने आंखें बंद करके क्या याद रखना है बच्चों? ऑयल रिग, ऑयल रिग, ये याद कर लो बस। What is the meaning of this? It is actually what? Oxidation is loss and reduction is gain. इस तरह आपसे याद रहेगा आपको, ठीक है। ये आपको क्या रहेगा? इससे याद रहेगा ताकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है, ये आपको याद रहेगा। Why it is reduction and why it is oxidation, ठीक है। अब आप देखो यहाँ आपके पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम मेटल है यहाँ पर, और यहाँ आप देखो क्या बन गया वो बच्चों? सोडियम आयन बन गया कंपाउंड में, ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट सोडियम आयन कैसे बनेगा? इट इज अ मेटल and loss of electron definitely gives you ion in metal ions, so it is what? Loss of electron. And if you talk about chlorine, so chlorine is gaseous over here and now it become what? Chloride ion, and if you want to balance it you can write 2 over here, and definitely -1 charge आया है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद आया होगा, तो 2 है क्लोराइड तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, this is what? Chlorine become chloride ion. Now आप देख सकते हो
there is loss of electron, and the loss of electron is always on the product side. You need to remember this. And the gain of electron is always on the reactant side. You need to remember this. कोई भी चीज गेन होती है तो वो डेफिनेटली रिएक्टेंट साइड पे लिखी जाएगी. अगर आपके पास ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन गेन हो रही है ना, तो ऑक्सीजन कहाँ लिखी गई होगी? पहले रिएक्टेंट साइड पे लिखी गई होगी, उसके बाद ही गेन हुई होगी. तो ऑक्सीजन अगर गेन होगा, you need to be right on reactant side, and if it is going to be loss or remove from somewhere, तो definitely product loss होती है, remove होती है, आप उसको product side पे लिखते हो. ठीक है ना? तो आप यहाँ देख सकते हो, simply आप यहाँ reason लिख सकते हो, sodium is oxidizing by the loss of electron and chlorine is reducing by the gain of electron. Is that clear बच्चों? और यहाँ पर अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो सोडियम के साथ और क्लोरीन के साथ भी. ठीक है बच्चों? सोडियम is losing electrons, so it is oxidizing and it is reducing. सोडियम एटम है ये, ठीक है ना? ये सोडियम एटम है और ये बन गया सोडियम का आयन. सो आप लिख सकते हो स्टेटमेंट, सोडियम एटम ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम आयन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये कंप्लीट 2 नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी आपके पास. अगर आप ये लिखोगे ना, सोडियम एटम ऑक्सीडाइज्ड to sodium ion by loss of an electron. अब आप देखो, ये जो आपने डेफिनेशन लिखी है, पूरी जो स्टेटमेंट आपने लिखी है, इट इज फॉर 2 मार्क्स. पहले तो आपने बता दिया ऑक्सीडाइज कौन हुआ, दूसरी बात आपने बता दी क्यों हुआ. सो दिस इज फॉर 1 मार्क एंड दिस इज फॉर 2 मार्क. दिस इज द स्टेटमेंट एंड दिस इज द रीजन. इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Clear. यहाँ आप लिख सकते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल reduced to chloride ion. ठीक है, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं. ठीक है, by gain of electron. Now this is for what? This is for the equations जहां आपको परेशानी होती है, जहां आपके पास ऑक्सीजन ना हो, जहां आपके पास हाइड्रोजन ना हो, तो वहां आप ये यूज कर सकते हैं. और मैं आपको रेफर करूंगा कि आप ये लाजमी याद करें क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा हो ना, आप ये लिख दो, आपको फायदा होगा. अब देखो इसका क्या फायदा है. इसका फायदा ये है कि अगर आप इस वाले को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखते हैं ये कार्बन, यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, कार्बन ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, गेन कर लिया. तो डेफिनेटली जब कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया होगा, देयर शुड बी अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल. इलेक्ट्रॉन के जो लॉस के बगैर उसको गेन नहीं कर सकता. ठीक है, ये अब आपके लिए परेशानी हो जाएगी कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है और जो है वो जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग है, शेयरिंग है, तो आप परेशान हो सकते हो. तो इसलिए हम इसकी एग्जांपल आपको नहीं देते. जब आप आगे जाएंगे तो आपको वैसे क्लियर नजर आ जाएगा. अब इसकी एग्जांपल देखें, मेटल की देख लेते हैं. चले हम एग्जांपल मेटल में देखें. यहाँ पर जिंक मेटल है और यहाँ क्या बन गया, जिंक आयन. तो अगर आप इसकी एग्जांपल भी देखोगे तो जिंक आयन कैसे बना होगा बच्चों, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बना होगा. तो अगर आपने ऊपर वहां लिखा है कि ऑक्सीजन गेन करने की वजह से जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, तो दैट इज ऑब्वियस इन द इक्वेशन, वो आपको क्लियरली नजर आ रहा है, तो वो रीजन लिखोगे तो भी बेस्ट है. लेकिन अगर आप आंख बंद करके ऑयल रिग वाला याद करके भी लिखोगे, मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको कुछ भी समझा दो दिखा दो वो नहीं कर पाते ना, उनकी प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी इंटरनली, तो वो ये वाली चीज याद रखें. अगर खुदा ना खास्ता आप में से ऐसा कोई है नहीं, मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, बट अगर कोई ऐसा, किसी को ऐसा लगता है कि यार मैं भूल जाऊंगा ऑक्सीजन का गेन, मैं हाइड्रोजन का गेन भूल जाऊंगा, तो वो ऑयल रिग याद कर ले, आंखें बंद करके पूरे रिडॉक्स में जहां पर जितने रीजन देने ऑयल रिग से देता रहे पूरे पेपर में. ठीक है, तो वो उसको फायदा होगा. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप कॉपर का भी देखोगे तो कॉपर आयन था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो क्या बन गया, कॉपर. देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भी हुआ. ठीक है, इस वाले को देख लो. चलो इस वाले को, आयरन वाले को देखते हैं. आयरन यहाँ पर +3 आयन था और यहाँ क्या बन गया, आयरन. ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है आपके पास कि उसने ऑक्सीजन लॉस किए तो वो रिड्यूस्ड हुआ है ना. तो देखो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इसने ऑलरेडी क्या किए हुए थे, दिए हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन इसने वापस गेन कर लिए, तब वो आयरन एटम बन गया ना. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ है, तो इस तरह भी लिखोगे तो भी ये रिडक्शन ही हो रही है ना. तो अगर आप किसी भी इक्वेशन को देखोगे बच्चों, अगर इस वाले को देखोगे, यहाँ मैग्नीशियम और यहाँ मैग्नीशियम +2 आयन बन गया, तो यहाँ पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही वजह से ये क्या बना होगा, आयन बना होगा. तो किसी भी इक्वेशन को आप देखोगे वहां ऑयल रिग लाजमी लग रहा होगा, लाजमी.
ठीक है, तो इस ऑयल रिग को प्लीज याद कर लें, ये आपको बहुत फायदा देने वाला है ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। एंड द लास्ट इज व्हाट, अगर आप देखो कि चौथी भी एक और कोई चीज होती है रिडॉक्स रिएक्शन में, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्लियर करने के लिए, तो वो आपके पास क्या होती है बच्चों, वो आपके पास होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होती है आपके पास वो ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, सो दैट इज व्हाट ऑक्सीडेशन। और अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, तो दैट इज व्हाट रिडक्शन। सब जगह सेम कहानी है, जो आपको रीजन समझ में आता है आप वो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो ये जो ऊपर वाला है ना, यही यूज कर रहा हूँ मैंने, आपको बताया ना, ये दिस इज ऑक्सीडेशन, है ना, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देखो यहाँ ये नॉर्मल मेटल है, खाली है, ये सोडियम यहाँ खाली है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ये मेटालिक है, इस वक्त एलिमेंटल है। यहाँ पर इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद क्या बन गया, +1 चार्ज बना लिया, है ना। अब आप देखो 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सिंपल, आपको साफ नजर आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई। और भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ही होती है, कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेटल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज, तो भाई पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो इंक्रीज हो गई ना ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज ऑब्वियस ओवर हियर। ये दूसरा वाला जो पॉइंट है ये इलेक्ट्रॉन के साथ का ही है। तो यहाँ क्लोरीन गैस है, तो ये भी एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इट इज ऑल्सो 0 ओवर हियर। और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, वो क्लोराइड आयन बन जाएगा, ठीक है। नाउ इट इज माइनस, आप देख सकते हो 0 से -1 नीचे की तरफ जा रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज व्हाट, दिस इज रिडक्शन, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो कि हमें देखना है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ, और यू कैन से दैट गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, loss of electron, gain of electron, increment in the oxidation state and decrement in the oxidation state. इनको देखते हुए हमें डिफरेंट इक्वेशंस को यूज करना होता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन द एग्जाम इज व्हाट, FeCl2 reacting with chlorine and forming what, FeCl3 ठीक है। अब बहुत से मुश्किलात हैं बच्चों के लिए इसके अंदर, तो देखो सबसे आसान काम देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के, Fe की पहले बात कर लेते हैं। FeCl2 ये कंपाउंड बना है, ठीक है। अगर आप इस 2 को इधर भेजते हो, और यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है डेफिनेटली 1 लिखा हुआ है, तो इसको आप यहाँ भेजते हो, तो आयरन का चार्ज आपके पास कितना आता है, +2 यहाँ पर, और क्लोरीन का आता है -1, ठीक है। इसी तरह आप अगर दूसरे वाले FeCl3 की बात करते हो, तो अगर आप इसको देखो बच्चों, तो ये 3 आता है आपके पास यहाँ पर, और ये 1 आता है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ आयरन कितना है, +3, और Cl डेफिनेटली -1 ही होता है हमेशा, ग्रुप 7 का। तो यू कैन सी ओवर हियर आयरन इज व्हाट, +2 से +3, ठीक है। +2 से +3 हो गया, यानी कि इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नजर आ रही है, इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नजर आ रही है, वो भी नजर नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हो आयरन +2 था और यहाँ +3 बन गया, तो यानी एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों बढ़ गई, बिकॉज इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो। सो इन बोथ द केसेस यू आर गोइंग टू सी दिस दैट आयरन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन or oxidizing, right? Or you can write the statement over here, iron +2 oxidized to iron +3, right? And what is the reason, oil rig by loss of electron। ये हो गया 2 नंबर, ये लाइन आपको 2 नंबर दे दी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास क्लोरीन मौजूद है, ठीक है। तो एलिमेंटल फॉर्म में हमेशा एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो ये 0 है इस वक्त, और यहाँ -1 है, सो यू कैन सी दिस, यहाँ पर क्लोरीन क्या हो गया बच्चों, reduced हो गया। So you can write the statement over here that chlorine molecule reduced to chloride ion, right, by gain of electron. So again oil rig over here, तो आप इसको भी देख सकते हैं। Is that clear बच्चों? Any problem with any one of you, so you can ask anytime, right? Even if you are going to shy that बच्चे हैं सुनेंगे ये ऐसा कुछ, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, मैं वो देख लूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है, बगैर उसका नाम आए मैं वो चीज दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। और मैं पहले बता चुका हूँ आप सबको कि आपने शाय नहीं होना है, हम सब यहाँ सीखने आए,
इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान पैसे दे रहा है, सीखने के दे रहा है, मैं खुद भी गलतियां करता हूँ। तो अगर आप लोग शाय हैं तो ये बहुत बुरी बात है, शाय नहीं होना चाहिए। जो आपका हक है आप मुझसे पूछें, 100 टाइम्स आप मुझसे सवाल पूछें, और कोई भी पूछे और आपको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा कि वो बच्ची कैसे सवाल पूछ रही है, वो बच्चा कैसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है? शर्माना नहीं है किसी ने भी, और अगर शर्मा सर रही है तो पर्सनल मैसेज कर दीजिए। यस सर FE वाला जो आपने एरोस से किया है वो एक और बार बता दें। FE वाला, ठीक है। देखो FE, अब देखो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कंपाउंड बनाना होता है ना, कोई भी कंपाउंड, तो वो कैसे बनता है? जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है तो इसका चार्ज +2 है, हमें पता है, ठीक है। क्लोरीन ग्रुप 7 का है, इसका चार्ज -1 है। तो इन दोनों के दरमियान जो फॉर्मूला बनेगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनता है, तो ये बन गया MgCl2, ठीक है। ये फॉर्मूला बनाने का तरीका है, और ये बच्चे बच्चे को आना चाहिए, क्लास 9 में ही सिखाता हूँ मैं, ये हर किसी को आना चाहिए। अगर ये नहीं आता आपको तो आपके मार्क्स पेपर में कटेंगे लाजमी। ये फॉर्मूला बनाना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला सही नहीं बनाओगे, इक्वेशन सही नहीं बनेगी, इक्वेशन सही नहीं बनेगी, बैलेंस नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगी, कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास FeCl2 था, जो नीचे वाला था मैंने उसको वहां भेज दिया, और जो यहाँ नीचे था उसको मैंने वहां भेज दिया। इसी तरह FeCl3 में जो यहाँ नीचे था मैंने उसको यहाँ भेज दिया, और जो यहाँ नीचे था मैंने उसको वहां भेज दिया। जाहिर सी बात है नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर ये तो 1 होगा, ठीक है ना। तो Fe क्या हो गया यहाँ पर +2, और यहाँ क्या हो गया +3। और ये प्लस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि भाई जो पहला वाला होता है वो मेटल होता है, और मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, इस वजह से। Is that clear? Now it is +2 to +3 इंक्रीज हो रही है, so it is what? ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। सर यस जैसे हमारे पास FeCl3 था, तो जो -1 है उसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। नहीं 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 नहीं, जब आप सिर्फ एक एलिमेंट की देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, हम उसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप क्लोरीन की देखोगे, वो फॉर्मूला है -3, उसमें 3 क्लोरीन है, ठीक है। उससे आप आयरन की निकाल सकती हो, लेकिन उसको आप 3 यूज नहीं करोगे, उसको आप -1 ही देखोगे हमेशा, ठीक है। ओके और सर। ये सारे ऑक्सीडेशन के रूल्स मैं आपको कल बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं सारे आपको कल बता दूंगा, ठीक है। चलो इसमें जल्दी से आप अपना होमवर्क लिखो, जल्दी से छोटा सा होमवर्क, कुछ इक्वेशंस मैं आपको दे रहा हूँ, इसके अंदर आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करना है, और उसके रीजंस लिखने हैं, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो रीजन लिख लेना जल्दी से। कॉपर सल्फेट में अगर आपने मैग्नीशियम डाल दिया तो आपके पास बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर बाहर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज फ्रॉम reactive series of metals। और फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लोरीन गैस को डाल दिया है पोटेशियम ब्रोमाइड के सॉल्ट में, तो आप देखेंगे कि आपके पास पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, और ब्रोमीन रिलीज हो जाएगी। दिस इज फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एक और इक्वेशन हम कहीं से देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप थर्मल डिकम्पोज करो बच्चों, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सो वी हैव 1 2 3 equations for homework. You need to find out the oxidation reduction in these 2 equations, and also you need to write the reasons over there, and you need to send all these picture on my WhatsApp as early as you can, okay? Is that clear, bacho? Even we have recordings, and if you want to take pictures, so you can take picture of this slide. Just do it quick, we have a very short time. Anytime Zoom can show his limits to us. Just do it quick. Done, bacho? Yes. Just take the picture of this as well, quick. It is all for your notes. It will be very important for you if you focus these things and you write in your copy, so it will be helpful. Done? Yes. Okay, and just take the last one also. Don't see that one, the organic, please. It is from A level. Done, bacho? Yes, sir. Okay, thank you so much, every one of you. And मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। I'm really sorry कि यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया, बट इंशाल्लाह कल की क्लास पूरी 40 मिनट्स की होगी, और परसों की भी क्लास 40 मिनट्स की होगी, और जो भी आपका 10 मिनट जाया हुआ है वो अपकमिंग क्लासेस में या अपकमिंग डेज में when we are on the peak उसको मैं कवर करा दूंगा, don't worry, right बच्चों? Is that clear? Yes.
Okay, so take care of yourself, stay safe, stay blessed. We will see you again in the next class with the redox reaction and the properties, and you can say that the things to remember for the oxidation state, right? So it will be more easier for you. So please don't miss the class for redox, right? And for your grades in redox, okay? Is that clear, everyone? Hamza, Asna, Ashina, Fatma, Samin, Khizar. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank Yes, you so sir. much. Stay safe, stay blessed. Allah Hafiz. And Hamza, kindly stand with the recording as you downloaded it. Okay. Okay, sir. Okay, Samin, any issue that you want to ask?